हाय एवरीवन, होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हमारे साथ द मलबरी शो पर हैं इंडियाज लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन कोच विनीता श्रीवास्तव, हु इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ मिस एंड मिसेज इंडिया ब्यूटी पेजेंट. So Vinita, welcome to the Mulberry Show. It's great to host you over here. We have put a lot of efforts in setting up this all together, and thanks a lot for your patience. Just wanted to ask you, what do you do and what exactly the kind of transformation you are bringing to the world, to the nation? Thank you so much, Abdullah, for having me over here. I know you have been doing so much of work till now. I was seeing that you are like amazing person over here. So I am the founder of VG Miss and Mrs. India Beauty Pageant, and I'm India's leading transformation coach. Why I started this pageant and what is happening, what change I'm bringing in the world of the people out there is, I am bringing confidence inside the woman who is the powerhouse of the house. जो घर की पावर हाउस होती है उनके अंदर मैं पावर भरने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज शी इज़ द ओनली वुमन, शी इज़ द ओनली वन हु कैन गिव समथिंग टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड एंड टू देयर फैमिली. उन्हीं पर विश्वास होना चाहिए सबका. तो आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट. All right, that's beautiful. One thing I really want to ask, why does a woman lose her confidence? What is the exact root which caused this to happen? Why is this happening first of all in the first place? ओके, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज अराउंड हर जो उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे उनको उस लड़की पे विश्वास नहीं होता. All right. जो बच्ची पैदा होती है धीरे धीरे, क्योंकि ये ना सोसाइटल नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर कि लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़की को वो नहीं करना चाहिए. वो पहले ज़माने से चले आ रहे हैं. एंड दैट इज़ हाउ दिस गर्ल स्टार्ट्स लूजिंग हर कॉन्फिडेंस Okay. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. From the very beginning. कई बार ये बोलते हैं कि बेटा बाहर मत जाना, टाइम पर घर आ जाना, और धीरे धीरे उसको अपने ऊपर से विश्वास छूटना शुरू हो जाता है. From the very start. Very starting, yes. She used to smile, she used to laugh, but slowly हंसो मत ज़्यादा, शक्ल मत देखो अपनी शीशे में. अच्छा, ये तो मेरे साथ भी हुआ है. हाँ. ठीक है. So this also happen a lot of times with women as well. हाँ, yes. My thing is, which I really want to ask, you have been doing this transformational Miss and Mrs. India beauty pageant all across the nation. Hundreds of women have participated over the years. What is the exact help? What is the exact help? Or what is the exact transformation? एडिटर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ से लेना. What is the exact transformation से? So what is the exact transformation you have been able to bring to this entire ecosystem? Okay, so what I will say, any girl or any lady who wants to do something in her life should definitely take part in, okay, one more time. Should definitely participate in a beauty pageant. Why? This is about the thing that we teach in beauty pageant is for the life. आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, मेरा सबसे ये मैसेज है, whether she is a girl or whether she is a woman, everybody should participate in a pageant once in her life, because this is a transformational thing. ये आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लेके आता है, ये आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आता है, ये आपके माइंडसेट में चेंजेस लेके आता है. तो ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. केवल एक चीज़ नहीं, इसमें केवल एक चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आपको कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे दुनिया को फेस करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अबाउट आउटर ब्यूटी, इट्स अबाउट इनर ब्यूटी, कि आप कैसे फेस कर सकते हो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज. एंड वो स्टेज पे चलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है फॉर अ वुमेन. हाँ, और जब वो स्टेज पर चलती है और जो पावर उसके अंदर उस वक्त आती है ना, वो कॉन्फिडेंस उसके पूरे फॉर ऑल ओवर लाइफ, दैट हेल्प्स हर आउट. दैट ब्रिंग्स इनसाइड, अंदर की ब्यूटी निकाल के बाहर आती है वो. So, Vinita, the beauty pageant that you have been doing, this happens for I think 4 to 5 days, right? So, I just want to know, the transformation is something which comes through a long time period, or it takes time. But how can someone be transformed in a matter of 4 to 5 days, or there is some other process through which they go through before coming into the beauty pageant, which is a long term process which works deeper on their
on their personality and grooming up? Like, what is the process? How does this transformation is happening? Does it really help in? Does it really complete in 4 to 5 days, or is there any long process behind this one? ओके सो लेट मी टेल यू लॉन्ग प्रोसेस की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही, मैं वो 3-4 डेज़ की बात कर रही हूँ कि 3-4 डेज़ में कितने चेंजेस आ सकते हैं. Okay. पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं, उनको केवल एक इशारा चाहिए होता है. Okay. एक आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट? सो हेयर व्हेन वी डू द पैजेंट ड्यूरिंग दोज 4-5 डेज, मैं केवल उन्हीं 4-5 दिनों की बात कर रही हूँ. मैं ये नहीं बोल रही कि पहले से कुछ करवाते हैं नहीं करवाते. मैं केवल उन 4-5 दिनों की बात कर रही हूँ. उन 4-5 दिनों में इतना अंतर आ जाता है कि वो आती किसी और तरीके से है और जाती किसी और तरीके से. Okay. क्योंकि सीखने में टाइम नहीं लगता, उनको बस बताना होता है कि भाई आपका बॉडी पोस्चर कैसे होना चाहिए, एंड दे अडेप्ट बिकॉज दे आर देयर टू लर्न ओनली ना. वो कोई ऐसे छोटा बच्चा नहीं है जिनको बोले बेटा ए के ऊपर ए लिखते जाओ, ए लिखते जाओ, ए लिखते जाओ, तब आपको ए लिखना आएगा. दे नो, दे हैव देयर पर्पस. उनको पता है वो ब्यूटी पैजेंट में आए क्यों है, और उनको बस सिखाने की ज़रूरत होती है. अभी मैंने रिसेंटली सीखा है, मैंने ट्रेनिंग करती भी हूँ मैं, और ट्रेनिंग ली भी है मैंने. क्यों मैंने ट्रेनिंग ली है? बिकॉज देर माइट बी समथिंग दैट इज़ मिसिंग फ्रॉम, लाइक आई हैव कंटेस्टेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. कोई उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं. तो हमें क्या लगता है डॉक्टर्स को सब चीज़ आती है, नहीं आती. इंजीनियर्स को सब चीज़ आती है, नहीं आती. एयरफोर्स ऑफिसर्स की वाइफ्स को सब चीज़ आती है, नहीं आती. दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न स्मॉल थिंग्स. और उन 5 दिनों में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है. और आई हैव सीन द गर्ल्स लाइक शाइनिंग लाइक एनीथिंग, द वे दे वॉक. क्योंकि उनको केवल एक हमें इशारा देना होता है कि देखिए आपका यहाँ पर बॉडी पोस्चर, सपोज आई एम सिटिंग लाइक दिस, मुझे केवल बताने की ज़रूरत है कि आप, मैं नहीं देख रही अपने आप को, यहाँ पर कैमरा मुझे देख रहा है, यहाँ पर मेरे ट्रेनर्स मुझे देख रहे हैं. और अगर वो मुझे बोलते हैं कि आप गलत बैठे हुए हो, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैं अच्छे से बैठी हुई हूँ, और ट्रेनर से मुझे बोला कि आपको ऐसे बैठना है, और मैं भी ऐसे बैठ गया. हाँ, तो ये ट्रेनिंग आ गई मेरे अंदर ना. तो अगली बार से मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ऐसे बैठना है. तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन 4-5 दिन में आता है ना, वो अमेजिंग होता है. Okay, this is like that. So you mean to say that जो लोग वहाँ आते हैं and the aspiring ladies who come up over there, उनको just एक सहारा चाहिए होता है, बिल्कुल. and they are ready to pick up the speed from there. Yes. All right, that is something which was intriguing me from inside, that how can the transformation happen in just 4 to 5 days. Now I get to understand that those are just from the fence ladies. Yes, and it should be done for every girl, every lady, क्योंकि हम उसमें वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहे हैं, हम वहाँ पे एटिकेट सिखा रहे हैं. तो हाउ यू शुड बी स्पीकिंग. सपोज कोई बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है, मैं आ रही हूँ, मैं जाती हूँ, मेरा नाम विनीता श्रीवास्तवा है, हम उनको वहीं पर करेक्ट करेंगे कि आप इस तरीके से नहीं बोलो, आप बोलो माय नेम इज़ विनीता श्रीवास्तवा. तो चेंज हैपन Immediately. All right. इमीडिएटली, द कॉन्फिडेंस लेवल चेंजेस. तो हम उनको बता रहे हैं कि आपसे सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या बोलना चाहते हो. मैं बोलना चाहती हूँ कि लोगों को बढ़ना चाहिए, हम उनको वही सही करते हैं. आप उसको बोलो मैं चाहती हूँ कि लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वो एकदम से टोन चेंज हो गया और वो उनके अंदर आ जाता है एकदम से. सो केवल रैम्प वॉक नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग है, कैमरा फेसिंग है, पोजिंग है, बॉडी लैंग्वेज है. आई लव द प्रोसेस. व्हेन आई सी द वुमेन, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ, व्हेन आई सी द वुमेन participating and when they transform themselves, they are ready to face the world. पैजेंट के बाद जब उनसे न्यूज़पेपर वाले, जब मीडिया वाले उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ऐसे आंसर्स देते हैं. वो लेडीज़ जिनको ये नहीं, घर में केवल ये पूछती थी कि भाई मैं क्या चाय बना लूँ क्या, वो मीडिया वालों को आंसर दे रही हैं कि हाँ क्या चेंजेस आने चाहिए, लेडीज़ को क्या समझ में आना चाहिए, लेडीज़ को कैसे आगे बढ़ना चाहिए. So every woman, I will say every woman should participate. Amazing. And till now, how many women have undergone through this beauty pageant process and this amazing opportunity? What is the count that you have completed till now? See, I started in 2019. After that, COVID happened. So till now, through the pageant, I have transformed 100 women. Okay, through the pageant. जो मैं पैजेंट के अलावा जो मैं कर रही हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग भी करती हूँ, उसमें आई डोंट हैव नंबर्स नाउ बिकॉज आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो मेनी वुमेन्स आउट देयर लॉट ऑफ पीपल थ्रू द वे आई, थ्रू द टिप्स आई एम गिविंग देम,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने अभी आपको एक छोटी सी टिप बताई, got अगली it. बार से आप भी अगर ऐसे बैठे हुए हो तो आपको एकदम से लगेगा नहीं मुझे ऐसे बैठना है. दिस इज शोइंग द पर्सनैलिटी. ये यहाँ पर मेरी पर्सनैलिटी शो हो रही है, मैं कैसे बैठी हूँ. बोल तो अभी भी वही इंसान हूँ मैं, आवाज़ भी वैसी निकल रही है, पर जैसे ही मैं ऐसे बैठती हूँ मेरी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी चेंज हो Very, जाता very है. nice. This is just a live demonstration that you just showed. That's beautiful. Uh, so one question also I have. So it is very challenging for the women to ask their husbands, because most of the times they depend on their husbands from which they seek the permission. So do husbands allow in this entire process to go through this process? हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ को प्यार करते हैं और हस्बैंड्स जो चाहते हैं कि उनकी वाइफ कंधे से कंधा मिला के चले, वो अलाउ करते हैं. Okay. जिन हस्बैंड्स को गुमान होता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, वो थोड़ा सा मना करते हैं. पर यहाँ पर मेरा हस्बैंड्स को एक मैसेज है, डू यू लव योर वाइफ और डू यू केयर फॉर योर वाइफ एंड डू यू वॉन्ट टू सी योर वाइफ स्माइलिंग. All right. कितने सारे हस्बैंड्स ने ये चीज़ नोट की होगी कि उनकी वाइफ ने हंसना छोड़ दिया, उनकी वाइफ ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, उनकी वाइफ केवल उनसे यही पूछने आती है खाना खा लीजिए, केवल यही पूछने आती है, वो आपसे बात नहीं कर रही है. क्यों नहीं बात कर रही है? क्या आपने कभी उसके मन की बात जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है, वो खुश होना चाहती है या नहीं चाहती है, कैसे हंसना चाहती है, कैसे बाहर निकलना चाहती है, क्या करना चाहती है? और कब आई हैव सीन दिस थिंग, वाइफ्स पूछती हैं हस्बैंड से कि क्या मैं ये कर लूँ, और हस्बैंड्स मना कर देते हैं कि मेरा पॉकेट नहीं है. वहीं पर हस्बैंड जाके आईफोन खरीद के लेके आता है. एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको वाइफ का. वाइफ ने बोला अपने हस्बैंड से मुझे पार्टिसिपेट करना है, उसके हस्बैंड ने बोला पार्टिसिपेट करोगी तो घर वापस मत आना. Okay. और उस लेडी ने मुझे बोला कि मैडम मेरे अंदर कुछ टूट सा गया है, अब मेरे अंदर वो इज्जत नहीं रही मेरे हस्बैंड के लिए. Oh my God. हाँ, अगेन मैं जब ऐसा बोलती हूँ, उसने ये लाइन बोली ना कि मैडम मैं वो इज्जत नहीं कर पा रही, मैं घर में सारा काम कर रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, खाना बना रही हूँ, पर मैं अंदर से इज्जत नहीं कर पा रही अपने हस्बैंड की. जिन्होंने ये लाइन बोल दी मेरे लिए कि मैं ऐसा कौन सा गलत काम करने जा रही हूँ जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे बोला. और ये चीज़ें क्यों आप मार रहे हो अपनी वाइफ को? एक लाइफ वो जीना चाह रही है और उसके बाद केवल उसकी लाइफ नहीं चेंज होने वाली, आपके परिवार की लाइफ चेंज होने वाली है. माई किड्स लुक एट मी लाइक दे आर प्राउड ऑफ मी नाउ. अर्लियर आई वॉज जस्ट अ मदर फॉर देम, जस्ट अ प्रोवाइडर. नाउ आई एम अ स्ट्रॉन्ग मदर फॉर देम एंड नाउ आवर फैमिली इज पावरफुल. केवल एक मैं पावरफुल नहीं हुई हूँ, मेरी फैमिली पावरफुल हो गई है साथ में. हम सब लोग एक साथ मिलके जब चलते हैं, जब हम सब लोग एक साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो सब लोगों को माँ में भी पावर नज़र आती है, बाप में भी पावर नज़र आती है. और ऐसे अगर आप अपनी फ़ोटो खिंचवाओ तो माँ ऐसे खड़ी नज़र आएगी आपको और फादर ऐसे खड़ा. Yes, exactly. I totally have seen this. राइट, यहाँ पर दोनों के दोनों ऐसे खड़े हैं. तो क्या बच्चों में वो वैल्यूज़ नहीं जा रही? कल को आपके बच्चे भी अपनी वाइफ्स के साथ या आपकी बेटियाँ अपने हस्बैंड के सामने ऐसे दबी हुई नज़र आएंगी. तो प्लीज़ अपनी वाइफ को थोड़ी सी, the pageant is all about the transformation that will transform your life, not only women's life. आपकी फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी. एंड बिलीव मी, लाइक मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इसका. Yes, and if you look at our scriptures of any, if you take Hinduism scriptures or Islamic scriptures, it is mentioned over there that if the ladies of the house are happy, the house just bubbles up with energy. ये मानते नहीं है ना लोग, ये केवल पढ़ते हैं लोग. अच्छा. कि दुर्गा माँ होती है, शक्ति होती है, ये केवल पढ़ते हैं लोग. दुर्गा माँ की पूजा भी करते हैं. हाँ. लेकिन जो सेंटेंस को सीरियसली ले लेता है ना, वही पावरफुल होता है. जो किसी भी मोटिवेशन को सीरियसली दिल से ले लेता है, उसकी लाइफ चेंज होती है. That's good. That's something very deep, very, very deep. So you have gone through this transformation by yourself. I have seen your videos. I have seen your journey. Your husband, Dr. Vishwas, has showed me a lot of times how you were, how you transcended the entire limitations of yours, and how did you realize that my way or my deep desire is to make impact
for the ladies, for the women of India who are like me. Amazing. So विनीता, my question is this, कि कई लोगों को लगता है आपको देख के कि विनीता तो बहुत अच्छे से बात कर लेती हैं, बहुत अच्छे से समझती हैं, सारी चीज़ें कर लेती हैं. तो क्या आप शुरू से ही ऐसे थे, या बोलते ना माँ की पेट से सीख के आई, ऐसा था क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर थी. मुझे बिल्कुल लाइक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, खेलने में भी इंटरेस्ट नहीं था. तो मैं बोलूँगी मैं किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी. मैं हर चीज़ में बिलो नॉर्मल थी. ओके. किसी को मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं होता था, ना कोई मेरा दोस्त बनता था, ना कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता था. तो मेरा तो शुरू से ऐसे ही था कि मैं बिल्कुल ऐਵੇਂ ही. वैसा? हाँ, कोई दोस्त नहीं बनती थी. क्लास में भी मेरी ऐसी सहेली नहीं होती थी जिसको लगता था कि हाँ मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए. मैं ही भागती थी दूसरों से तो दोस्ती करने के लिए. ट्रांसफॉर्मेशन वाला ब्रिज कब बना, वो चेंज आया कब, ये बदला कब? ओके, ये बदला जब मैं 47 ईयर्स की हो गई तब. अच्छा, बहुत जल्दी बदला. बहुत जल्दी बदला. शुक्र है बदल गया. पर बदला कैसे? पर बदला, मैं बोल रही हूँ पर बदला. हाँ. लोगों की लाइफ में वो बदलाव भी नहीं आता. हाँ. मेरा लाइक शादी हो गई, MA BEd भी किया मैंने, पर किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग किया. कभी कोई फर्स्ट क्लास नहीं है. 10th क्लास में बाय द वे मैं थर्ड डिवीजन आई थी मेरी. हाँ. तो शादी हो गई. शादी के बाद 5 बच्चे हैं मेरे. एक बेटा स्पेशल है मेरा, 25 ईयर्स का है अभी वो. तो बच्चे भी सब लोग बोलते हैं 5 बच्चे क्यों. पहला तो मुझे बेटी चाहिए थी उसके पीछे. एंड सेकेंडली आई नेवर थॉट कि 5 बच्चे हैं मेरे. कभी ऐसा फील नहीं हुआ. बट आई एम लकी दैट आई एम हैविंग 5 किड्स बाय द वे, क्योंकि आई हैव गॉट अ वेरी क्लोज नेट फैमिली. तो एज अ लाइफ ऑफ मदर, लाइफ वॉज गोइंग ऑन. एज अ लाइफ ऑफ वाइफ, लाइफ वॉज गोइंग ऑन. बट व्हेन आई वॉज 47 समथिंग हैपेंड. कुछ बहुत ही बड़ा एक कहेंगे मैं अर्थक्वेक आया, सुनामी आई. जैसे मैं अभी सदगुरु का पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि इफ़ यू वांट टू ग्रो देन earthquakes and landslides will happen in your life. So same thing. मुझे अभी वो लाइन बहुत ज़्यादा कर रही है इस तरीके से कि वाकई में वो लैंडस्लाइड था, एक तरह से सुनामी था हमारा लाइफ का. कि हमारा वी लॉस्ट एवरीथिंग वॉट एवर वी वर हैविंग. वी हैड नथिंग एट ऑल. हमारा सारी चीज़ें एक तरह से, हमारे घर का सारा सामान, सारी चीज़ें. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बाय द वे. बहुत कई बार किसी और दिन बैठ के बताऊंगी. बट वी लॉस्ट एवरीथिंग वॉट एवर वी वर हैविंग. Not even, I don't have a picture of my kids. I don't have a sari of my शादी. I don't have anything of mine. कुछ भी चीज़ें नहीं है मेरे पास. तो वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई. And then we decided, like both of us, me and my husband decided कि what to do next. Because when you are nobody, people start treating you like absolutely nobody. Okay. Nobody भी कम वर्ड है उसके लिए. तो they just start treating you like you are the gone case. अब ये इनसे कुछ नहीं मिलने वाला. बट देन गुड पार्ट इज माई किड्स वर टुगेदर. माई हस्बैंड एंड मी, बोथ ऑफ अस सैट टुगेदर एंड सेड व्हाट टू डू नेक्स्ट. एंड देन माई ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टेड हैपनिंग. Okay. देन दैट थॉट प्रोसेस स्टार्टेड. जो सोचना बंद कर देती है ना लेडीज़ कि कुछ करना ही नहीं है. लाइक सुबह उठना है, खाने में क्या बनाना है, दोपहर को खाने में क्या बनाना है, आज नई रेसिपी क्या बनानी है. तो यही थॉट प्रोसेस होता है मोस्ट ऑफ द लेडीज़ का. लेकिन जिस पॉइंट पर आके मैंने सोचना शुरू किया, वो मैं 47 ईयर्स की एज पर आके मैंने सोचना शुरू किया कि ज़िंदगी में करना क्या है. Okay. कि फ्यूचर क्या है. जो हर लेडी को समझना चाहिए और हर माँ बाप को अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा तेरा फ्यूचर क्या है. अच्छा पति मिल जाए तेरा फ्यूचर है, या तू अच्छे से कमाना शुरू कर दे, ये तेरा फ्यूचर है. तो 47 ईयर्स में जब सोचना शुरू किया कि फ्यूचर क्या है. मैंने केवल MA BEd किया हुआ है. कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पढ़ाई नहीं कर रखी कि जिसके लिए बोला जाए कि हाँ भाई ये तो शुरू से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी. पर्सनैलिटी भी अच्छी थी नहीं. हाँ, भगवान ने लंबाई ज़रूर दे रखी थी. शक्ल जो दे रखी थी उसको मैंने यूज़ किया, उसको मैंने इन्हांस किया. मेरी पर्सनैलिटी को मैंने इन्हांस किया, बालों को मैंने इन्हांस किया. I have seen that. मेरे बिखरे हुए बाल रहते थे, चेहरे पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई स्माइल नहीं थी. सो आई इन्हांस्ड एवरीथिंग to reach at this point where I am able to motivate others. Very nice. I want every woman to enhance their personality so that you can also help other people out. Not for yourself, to helping others out. So I decided, because when I went down, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं confident होती तो कुछ और भी कर सकती थी शायद.
या वो जो थॉट प्रोसेस लेट आया ना, जो सोचना मैंने लेट शुरू किया, वो मैं पहले भी सोच सकती थी. All right. और ज़्यादा सोच सकती थी. So you got the awareness that something needs to change. कुछ तो बदलना पड़ेगा. हाँ और जब वो आया तो फिर रास्ते खुद ही दिखने लगे आप. हाँ बिल्कुल. और वो रास्ते आप खुद ही दिखा रहे हो हाँ लोगों को. तो रास्ते खुद ही दिखेंगे जब आप देखना चाहोगे तो, वरना बहाने बहुत हैं. मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा स्पेशल है, आई वॉज नॉट हैविंग मनी, आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग. बहुत बहाने हैं, बहुत बहाने हैं. ओके, एब्सोल्युटली. जिसके पास दोनों हाथ दोनों पैर नहीं होते वो भी स्विमिंग कर जाता है, और जिसके जो पूरा हेल्दी होता है वो एक पानी में उतरने से कतराता है. Got it, totally. This is something all the women of the nation needs to understand on a deeper level actually. तो विनीता, ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ होता है? हाउ इफ वन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द ब्यूटी पेजेंट, व्हाट इज द वे अराउंड? कैसे आ सकते हैं? ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, फॉर माई ब्यूटी पैजेंट स्पेसिफिकली, आई डोंट हैव एनी क्राइटेरिया. आपको सुन के हंसी आएगी कि ब्यूटी पैजेंट बोल रहे हो, क्या इसमें ब्यूटीफुल होना ज़रूरी नहीं है? नहीं. क्या उसमें बॉडी फिट होना ज़रूरी नहीं है? नहीं. क्या उसमें लंबे छोटे होना ज़रूरी नहीं है? नहीं. मैं ये कहूँगी एवरी वुमेन हु वॉन्ट्स टू फील कॉन्फिडेंट, और जैसे मैंने बोला, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, स्काई इज़ द लिमिट. ओके. यू पार्टिसिपेट इन द पैजेंट एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस. You have to trust yourself. Very, very nice. कोई हाइट क्राइटेरिया नहीं है, कोई वेट क्राइटेरिया नहीं है, बट द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस आफ्टर द पैजेंट. आपका माइंडसेट जो एकदम से खुलता है ना, बूम करके खुलता है एकदम से. ओ माय गॉड, मैं तो ये भी कर सकती हूँ. यू कैन बी द फोटोग्राफर, यू कैन बी द मॉडल, यू कैन बी द मोटिवेटर. पैजेंट करने के बाद इतने सारे आइडियाज आते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती कि कितना चेंजेस आता है लोगों की लाइफ. बहुत चेंज आता है, बहुत ज़्यादा. That's something beautiful. That's something very, very beautiful. Super. So विनीता, पेजेंट जो आपने स्टार्ट किया, जो इतना सेंसेशनल होता जा रहा है, एंड यू आर इनवाइटिंग सेलिब्रिटीज इनटू दैट, व्हिच इज आल्सो अ वेरी आई ग्रैबिंग मोमेंट व्हिच इंस्पायर्स इन सम और डिफरेंट वे. ये आइडिया आया कहाँ से, और ये आइडिया अभी दिखता कैसा है ऑन अ ग्रैंड लेवल? आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद की पिक्चर क्या दिखती है, और ये आया कहाँ से था आइडिया? मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि एक लेडी को एक छोटा सा विश होता है, छोटा सा रैंप पर वॉक कर लेते हैं, मेकअप करवा लेते हैं, क्योंकि मेकअप होता है शादी में. yes. और वो भी मेकअप खराब हो जाता है. मेरा शादी में मेकअप तो बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, तो मेकअप करवाने का मन था, वॉक करने का मन था, तो आई पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ द पैजेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग. बट वहाँ से मुझे, जैसे मैंने बोला ना, दिमाग खुलता है एकदम से. वहाँ पर जाके मेरा दिमाग खुला कि मैं इसको बेटर लेवल पर सिखा सकती हूँ, इसको मैं बेटर तरीके से लेडीज तक पहुँचा सकती हूँ, और इसको मैं बेटर बना सकती हूँ पैजेंट को. सो देन आई स्टार्टेड माई ओन पैजेंट. आई सेड नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिली हैं कई जगह पे, और मैं अपनी लेडीज़ को, मैं चाहती हूँ कि मेरी लेडीज़ बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंट हो जाए कि बस फाड़ दे सब. ओके. मैंने 2019 में स्टार्ट किया था. 2019. हाँ, और उसके पहले मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी. मैं बहुत धीरे से ऐसे करके बात करती थी. एंड नाउ आई एम टोटल, आई विल से बैड एस. व्हाई आई एम सेइंग बैड एस? लेडीज शुड बिकम बिंदास. जीना, हंसना, बोलना, खिलाना प्लीज शुरू कर दो सब लोग. सो विनीता, जैसा आप ये बता रहे हो, मेरे दिमाग में भी जैसे क्लिक हुआ कि आपको लॉस बहुत बड़ा हुआ. मैंने आपके हस्बैंड से भी बात किया, लगभग बहुत बड़ा लॉस है, और हिम्मत चाहिए. तो पैसे तो है नहीं, अभी पैसे नहीं है, और आपने दिमाग में पेजेंट को स्टार्ट करने का आइडिया आ गया है, तो पैसे तो लगते हैं. तो ये हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हो गया, इतना बढ़ता कैसे जा रहा है? हाउ इज इट बिकमिंग सो सेंसेशनल एंड सो बिग? व्हाई इज इट हैपनिंग? यस, आई वाज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी. लेट मी टेल यू, सिंगल पेनी. मेरे पास केवल 50,000 की ज्वेलरी थी. ओके. जो मैंने बेच के मैंने स्टार्ट किया. बट एक आइडिया आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. ये मैसेज है सबके लिए. दिस इज नॉट जस्ट अ कोट. एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ. वो आइडिया जो हमारे दिमाग में आया, आइडिया आने के बाद, जिसको आप चाहे उसको मैनिफेस्टेशन बोल दो, चाहे उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दो, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग, यू स्टार्ट ग्रोइंग. वाह. एंड देन यस, वी हैड टू टेक लोन्स. ऑब्वियसली पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो पैसे कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही ना. तो और आज मैं यहाँ पर हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं से पैसे आए हैं. कुछ ना कुछ किया है. जब मेरे पास पहला रजिस्ट्रेशन आया था लड़की का, आई गॉट 3,000 रुपीज. लाइक वी स्टार्टेड जस्ट गिविंग, नॉट इवन एड.
हमने फेसबुक पे केवल डाला। पेड ऐड नहीं डाला, पोस्ट ऑर्गेनिक पोस्ट। ऑर्गेनिक पोस्ट डाल दी और मेरा पहला 3,000 रुपये आया. दैट डे आई क्राइड लाइक एनीथिंग. यस, इट हैपेंस. आई क्राइड लाइक एनीथिंग. लिटरली जोर जोर से रोई मैं उस दिन कि 3,000 रुपये आए हैं. एंड लाइक दैट वाज द ब्लेसिंग. एंड देन इट स्टार्टेड हैपनिंग. पीपल स्टार्टेड पेइंग मी फॉर ओनली रजिस्ट्रेशन. And that time I start because we were not having money to go to take auditions to different places. Okay. क्योंकि उस वक्त पैजेंट में होता है कि अलग अलग स्टेट्स में जाके अलग अलग सिटीज़ में जाके ऑडिशंस लेते हैं. हमारे पास पैसे नहीं थे. अब क्या करते. मैंने बोला वी आर डूइंग ऑनलाइन ऑडिशंस. Okay. व्हाट्सएप पर कॉल करके मैंने ऑडिशंस लेना शुरू करी. और एक एक दिन में मैं कम से कम 50-50 लड़कियों को कॉल करती थी, उनसे बात करती थी और उनको फिर मैंने कन्वर्ट करना शुरू किया. लाइक नॉट कन्वर्ट, आई विल से I started serving them because that was their dream to walk on the ramp, and I was making that dream fulfilled. I was making my dream also fulfilled. तो जब जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट किया, देन वी स्टार्टेड गिविंग द एड. धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके वी स्टार्टेड डूइंग दैट. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि मेरे हस्बैंड किचन में खाना बना रहे होते थे, मैं कॉल कर रही थी. मेरी बेटी आती थी, मम्मी क्या कर रही, बात कर रही हूँ अभी. रात को 8 बजे तक 9 बजे तक मैं लोगों से बात कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ. यस. That's very beautiful. तो मैं बस एक चीज़ बोलूँगी, सोच बड़ी होनी चाहिए. हमारी सोच बड़ी थी. मैं कोई छोटा मीडियोकर काम नहीं करना चाहती थी. आई कॉल्ड डायना हेडन टू लॉन्च माई पैजेंट. आई कॉल्ड मिस्टर रिजवान सजान फ्रॉम दुबई टू बी द जज इन द पैजेंट. सोच बड़ी होनी चाहिए. Yes. Vision has to be so big. विजन अच्छी होनी चाहिए आपके अंदर. सर्विंग का you should not only think about earning money. We spent like we were not. जब हम लोग होटल गए थे तभी हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे. We spent each and every penny on the pageant, and when we came back from the pageant, my husband came back from metro. Okay. तो पर हमने इसको लगातार हवा देते गए, हम उसको बढ़ाते गए. And then wow. Today lot of I am seeing also a lot of your advertisements आते हैं और अभी दिखता है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं. Celebrities are coming endorsing you. आप हर जगह आपको बुलाया जाता है अभी. एंड मैंने आपका एक वो भी देखा है पिक्चर्स एंड वीडियोस जहाँ पे यू लुक लाइक यू वांट टू इवॉल्व बट यू हैव नॉट इवॉल्व्ड. अब साड़ी में है, काम नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग एंड ऑल. हाँ, कुछ भी नहीं है. और मैंने अपने आप को ये भी देखा है और मोस्ट ऑफ द लेडीज़ को देखा है, ड्रेसिंग रूम में जाके ड्रेसेस पहन के बाहर आ जाती हैं वापस साड़ी में. हाँ. उनका मन करता है वो ड्रेसेस पहनने का, पर वो बाहर पहन नहीं पा रही. व्हेन आई वाज यंग आई वाज ओल्ड. Now अब मैं कुछ नहीं बोल रही. Alright, let's not go into vice versa here. Alright, so this is it. This is beautiful. This is amazing. तो विनीता, आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं. आप पेजेंट भी रन करते हो, 2-4 चीज़ें बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स में आप करते हैं. सो पेजेंट के अलावा आप और क्या एक की एक्टिविटी है जो आपको बहुत फुलफिलिंग दिखता है और आप करते हैं? आई लव टू हेल्प वुमेन. तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हूँ. मैं ऑनलाइन लेडीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाती हूँ. ना लेडीज़ माइट थिंक क्यों चाहिए उनको ट्रांसफॉर्मेशन एक ही फंडा है. यू बिकम कॉन्फिडेंट फॉर द फैमिली, यू बिकम कॉन्फिडेंट फॉर योर लाइफ, you become confident for your future. All right. So I am training them on becoming confident. There are ways to becoming confident because you have to start from somewhere. You stopped. आप कहीं ना कहीं रुक गए हो. हर लेडी यहाँ पर, आप जो भी यहाँ पर लेडीज़ देख रही हैं, मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं आप रुक गए हो अपने सोच में कि अब क्या करना है लाइफ में. अब मैं इतने साल 40 साल की हो गई, अब मुझे क्या करना है लाइफ में. तो रुको नहीं, प्लीज़ आगे बढ़ो. और मैं जो कोचिंग करवाती हूँ वो मैं स्टार्ट करवाती हूँ कि हाउ यू शुड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. दैट इज़ द बेसिक थिंग. पीपल हैव स्टॉप्ड लविंग देमसेल्व्स. सो हाउ यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, हाउ यू शुड स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ. देयर आर वेज. क्योंकि ऐसे नहीं होगा, केवल सोच के नहीं होगा. और ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्लर चले जाओगे कि हाँ मैं आज फेशियल करवा के आ जाती हूँ. दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग. देयर आर सो मेनी थिंग्स. देयर आर सो, हाँ वो सरफेस से भी नीचे का लेवल. अच्छा ऐसा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें. तो मैं वहाँ पर आप उनको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताती हूँ. मैं उनको बताती हूँ कि कैसे कैमरा के सामने पोज करना है, क्यों कैमरा के सामने पोज करना है. बिकॉज वंस दे आर कॉन्फिडेंट फ्रंट ऑफ द कैमरा. जैसे मैंने बोला अभी, अगर ऐसे मैं ऐसे फोटो खिंचवा रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी फोटो खिंचवा रही हूँ, मैं ऐसे बैठ गई, मुझे लगा अरे मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं तो उसकी हीरोइन की जैसे लग रही हूँ, वो मधुबाला की तरह ऐसे बैठती थी. आप देख ही नहीं रहे कि आप लग कैसे रहे हो. तो यू शुड लर्न हाउ टू क्लिक कैमरा, क्लिक फोटोग्राफ्स.
You should learn how to what body language you should be having. Totally. So, Vinita, what is that one big tip, body tip, which you want to give women of India? Big tip is start valuing yourself. Ah, amazing. अपने आप को शीशे में देख के बोलो कि क्या आप मुस्कुरा रहे हो, देखो और बोलो यार बहुत प्यारी लग रही है तू, कब से तूने अपने आप को प्यार नहीं किया. वाह, लोग करते नहीं ऐसा. लोग करते नहीं है ऐसा. और अपनी आप देखिए कि आप की आंखों में कितने आंसू हैं, कितनी बार आप दिन में डिप्रेस होते हो, कितनी बार दिन में खुश होते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लुक एट योर बॉडी लैंग्वेज. Look at your body language. That's beautiful, Vinita. I think what you are doing is something beautiful. One question I personally wanted to ask. आपका आज से 5 साल बाद अगर मैं बोलूँ जो आप कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन ऑफ द नेशन, पाँच साल बाद मुझे वो लेडीज दिखाई दे रही हैं जो हंस रही हैं घर में, वेदर दे आर हाउसवाइफ्स और दे आर वर्किंग वुमेन, दे आर हैप्पी. सो आई कैन सी thousands, crores of women laughing heartily, clapping, dancing like anything, and living the life of their dreams. I'm looking at them. wow. Any plans to go international from here? Definitely. So already I'm having ladies in my community from 18 countries. Already I'm having. Okay. Already I'm having. They are Indians. Okay. But here I would love to go international, and I see myself standing in the stadium full of women and singing one song कि कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है. वाह. I think you are taking a new birth. It feels like. So Vinita, एक क्वेश्चन है कि ब्यूटी का मतलब होता क्या है? आज के टाइम पर कॉस्मेटिक्स वाला ब्यूटी होता है या कुछ और ब्यूटी है जो ब्यूटी है? What is the definition according to you when it comes to beauty? Beauty is a smile on your face. Ah, very nice, very nice. Cosmetics add value. Okay. मैं ये नहीं बोलूँगी कॉस्मेटिक्स गलत है. Okay. Cosmetics add value to the face. Okay. They give you more power. All right. They give you confidence inside. Okay. So it does not matter आपका height, आपका weight क्या है, does not matter. When you smile at yourself, looking at yourself, आप जब अपने आप को अच्छे लगने लग जाते हो ना, वहीं पर ब्यूटी है. Ah. हाँ, so on this note, I have written this book, Walk with a Smile. This is about a woman who really want to walk with a smile. जो मैंने बोला ना, अपने आप को जिस दिन आप अपने आप को चेहरे में देख के बोलते हो कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ और मैं अच्छी तरीके से लाइफ जी रही हूँ, आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, that is what beauty is, and this is the book on Walk that. with a smile. Yes. Beautiful. I have read a quote which I always find very inspiring. A joyful face is a beautiful face. In simple words. Yes. All right. So विनीता, ये ब्यूटी के जो स्टैंडर्ड्स है ना हमारे नेशन के अंदर बहुत अलग अलग दिख रहे हैं, वो चेंज होते हुए दिख रहे हैं. आपके हिसाब से हाउ डू यू सी दिस कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड क्या है? ब्यूटी का स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो गया आजकल. आजकल आप देखोगे गूगल भी ऐसी लेडीज़ को अपने ऐड में लेके आ रहा है जो जिन्होंने एक सोशल इन्फ्लुएंस बना के रखा है. ओके. दे आर नॉट टेकिंग इवन तानिश्क, इवन डव. यू डोंट एक परफेक्ट फेस, perfect color, perfect height, perfect body is not necessary. But your perfect mind is very necessary. Beautiful. Okay, आपकी सोच कहाँ पर जाती है और आप अपनी सोच से कहीं पर भी पहुँच सकते हो. That is what like I have seen in so many of ads. Now a lady of 60 also is a model. A lady of 15-year-old girl is also showing the path to the people and people are following her. तो कोई भी स्टैंडर्ड, ऐसा स्टैंडर्ड बाई चांस बाय द वे नहीं रह गया जो पेरेंट्स बोलते हैं ना इसकी नाक सीधी हो जानी चाहिए, ऑपरेशन करा लो या लिप्स इन्हांस करा लो. तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ. बट स्टिल देयर आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्लास्टिक सर्जरी बढ़ रही है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपने ऊपर. वाई? बिकॉज दे हैव सीन अर्लियर पिक्चर्स ऑफ मॉडल्स कि ऐसे ही होनी चाहिए, एंड देन the younger generation wants to change their body, change their face. I'll say don't do that. You are anyways, you are beautiful. आप हर तरीके से अच्छे लग रहे हो. तो for me I will say everything is good, everything is beautiful. Very nice. Very nicely and aptly put. Very beautifully articulated.
दैट्स अमेजिंग. सो विनीता, आपके ब्यूटी पेजेंट में अलग अलग नेशन से, कल्चर से, यू नो, यू विल फाइंड द वुमेन ओवर देयर, आते हैं वो लोग, और सबके अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, और उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला के वो फैमिली वाला बॉन्डिंग जो मैं देखता हूँ आपके कम्युनिटी में, वो करते कैसे हो आप? देखिए, रट्टू तोता तो नहीं बनाते हम. अब कोई लेडी बिहार से आ रही है, कोई लेडी साउथ से आ रही है. जो लेडी बिहार से आ रही है वो बोल रही है हम हैं ना, और जो साउथ से आ रही है वो आई एम हियर. अच्छा, यस. दैट इज़ देयर वे ऑफ टॉकिंग. वी कैन नॉट चेंज दैट. वो उनकी एक्सक्लूसिविटी है जो हम उनको चेंज नहीं करना चाहते. वी आर गिविंग देम द पाथ, और वी आर गिविंग देम द टिप्स टू एनहांस their body language, enhance their communication skills, enhance themselves. तो जो भी, जैसे सपोज वो बोल रहे हैं हम हैं ना, आप वैसे ही बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैडम हम बिहार से आते हैं, हम हिंदी में बात करें क्या? बिल्कुल बात कीजिए. क्यों नहीं बात करेंगे हिंदी में? क्यों नहीं अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे? आपको केवल अपने आप के लिए, जैसे मैंने बोला, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो लाइक इट्स यूनिटी इन डिवर्सिटी. वी आर टीचिंग देम हाउ टू डू सर्टन थिंग्स, एंड वो फिर अपनी पर्सनैलिटी में उनको लेके आगे चलते हैं. उनकी अपनी पर्सनैलिटी निकलती है, उनका जो यूनिकनेस है ना वो बढ़ता है. So it is about enhancing, not changing. एवरीवन, नॉट चेंजिंग. एवरीवन इज यूनिक. तो अपनी यूनिकनेस को कैसे आप एनहांस कर सकते हो वो सिखाते हैं. Very nice, beautifully put. So Vinita, you have come today the Mulberry Weddings, in the office of Mulberry Weddings. बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? Please go on. सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, थैंक यू अब्दुल्ला फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ VG मिस एंड मिसेस इंडिया ब्यूटी पैजेंट एज अ फोटोग्राफी पार्टनर. आई वॉज लुकिंग फॉर समबडी हु इज़ रियली यूनिक एंड रियली पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी, and I found you. Like, that is a God's gift from like my husband told me about you. I did not know, by the way. और वेडिंग्स का मुझे ऐसा लगता है कि वेडिंग्स की फोटोग्राफी डिफरेंट होती है. बट व्हेन यू शेयर्ड योर इनपुट, व्हेन यू शेयर्ड योर इनसाइट, और जब आपने बोला कि आप किस तरीके से उसको लेके जाओगे, किस तरीके से आपके लोगों को उसमें फ़ायदा होगा, और किस तरीके से मेरी लेडीज़ को उसमें फ़ायदा होगा. एंड आई फाउंड दैट यूनिकनेस. आई फाउंड दैट एक नया, जिसको बोलते हैं ना, नया आइडिया एकदम से जो निकल के आता है कि हाँ, इसको इस तरीके से कर सकते हैं. आई एम so happy to have you as a photography partner in our pageant. Looking forward to it. Like Mulberry Weddings and VG Miss and Mrs. India Beauty Pageant. Going to rock. All right. So this is at Mulberry Weddings. हम लोग का अभी सबसे बड़ा जो जीत जिसमें हम देखते हैं वो ये है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ब्राइड्स हो गई, चाहे हमारे मॉडल्स हो गई, अल्टीमेटली दे हैव टू हैव दैट स्माइल. आपने भी थोड़ी देर बाद बोला वॉक विद अ स्माइल, तो वहाँ पे दिखना चाहिए. और जितनी देर हम लोग लगभग 1.5-2 घंटे से साथ में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू हैव बीन मैरिड, राइट, एंड हैविंग ब्यूटीफुल किड्स. इफ़ यू वुड नॉट हैव बीन मैरिड, देन obviously the Mulberry Weddings would have covered you. वाओ, यस, डेफिनेटली. मुझे बहुत, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी 30th एनिवर्सरी, मैं 50th एनिवर्सरी तक का वेट नहीं करूँगी. बाय द वे 30th, क्योंकि मैं 29 ईयर्स हो गए, 25th होता तो मैं पहले बोल देती. सो 30th एनिवर्सरी विल बी कवर्ड बाय Mulberry Weddings. एंड यस, मैं उसको मिस नहीं करना चाहती. मैं इस मौके को मिस नहीं करना चाहती. मैं आपको मिस नहीं करना चाहती कि आप शूट करो मेरी वेडिंग. तो That's beautiful. Looking forward to it. So, hi everyone at Mulberry Weddings. आज Mulberry Weddings पे हमारे साथ है विनीता श्रीवास्तव. She is the founder of Miss and Mrs. India Beauty Pageant. And the best part is, like, she is a transformation coach. अभी तक hundreds of women she has transformed who have gone through her, till now, for the time being, on her online sessions, she has transformed a lot of ladies. And physically in her beauty pageant, hundreds and hundreds of ladies have come up, women of the nation have come up, and they have transformed. She is there today with us at Mulberry Weddings. Thank you so much, Abdullah, for having me over here. I really look forward to have our collaboration taking higher and higher level. All right. God bless you all. Thank you so much. Thank you so much.